Well, hello everybody, welcome back to my channel again, welcome back to Shiv Astrology, and from today we are going to start new series of Mars in various houses. आज से जो वीडियोस बनेंगी वो मंगल ग्रह के बारे में बनेंगी, मंगल ग्रह के ऊपर बनेगी। आज जो वीडियो है उसमें मैं अपनी आपको ऑब्जर्वेशंस बताऊंगी जब मंगल ग्रह कुंडली के पहले स्थान में आके बैठते हैं, लगन में आके बैठ जाते हैं, असेंडेंट में बैठते हैं, तो किस तरीके के इफेक्ट्स देंगे। इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू माय ऑब्जर्वेशंस व्हेन मार्स इज प्लेस्ड इन फर्स्ट हाउस और लग्ना और असेंडेंट, कितने अच्छे कितने बुरे इफेक्ट्स देते हैं ऐसे जातक को उसकी लाइफ में, उसकी पर्सनालिटी कैसी होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। An individual with Mars in the first house can embody the Martian image, and this can be through being courageous, independent, and possessing a fighting spirit. Mars also represents the aggressive, assertive, and dynamic projection of their desires, and so there is a fearlessness, drive, and self-assertion which are powerfully expressed. The red planet can add fire and intensity to the personality, a lust for life, and a living for the moment mentality. There is often a compelling force to their appearance, we can say, and it can quite often represent a personality that is forceful, a come on strong type of persona. It can often be the placement of somebody who is extremely active in his or her daily life, youthful, enthusiastic, and daring. They have energy at their disposal and often take action when needed with no hesitation. अब जब लगन में मंगल ग्रह आके बैठ जाते हैं तो आपको ये अद्भुत साहसी बनाते हैं, और ऐसे हालत में आप कभी कभी आपको दुस्साहसी होते हुए भी देखा जा सकता है। आप किसी भी प्रकार के दबाव में कभी भी नहीं रह सकते। आप एक मुखर व्यक्ति हैं और जो आपके मन में आता है आप उसको बोल डालते हैं, आप सोचते नहीं हैं, आप चूकते नहीं हैं बोलने में। आपको शारीरिक तौर पर मजबूत होना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन मंगल ग्रह के कारण जब वो फर्स्ट हाउस में आके बैठते हैं तो आपको हेडेक ज़्यादा हो सकता है और आपके एक्सीडेंट्स यानी दुर्घटनाएं भी हो सकती है। नाउ दिस इज द कंडीशंस अप्लाई वाला पॉइंट, ओके। Now the first house is Mars home according to Kalpurus system and rules the outer personality, vitality, and expression of self, and the way a person goes about approaching to others. And when a fiery planet, Mars is a fiery planet, so when a fiery planet is placed here, they are more motivated to go out into life and keep their we can say sense of vitality by having things to look forward to and never back, always forward. And depending on the other mitigation factors in the individual chart of such person, we can also find that there is a quarrelsome nature inherent and sometimes inconsiderate, fierce and violent, and sometimes they meet people that act in the way as they do with others. The individual may quickly find themselves in a heated situation approaching life as the life is always some kind of battle. वो ऐसे कई बार अप्रोच करते हैं लाइफ को जैसे लाइफ एक वॉर की तरह है, लड़ाई की तरह है। एंड दे ऑफन एक्ट फर्स्ट एंड थिंक लेटर। इनकी छोटी सी बात मुझे बहुत अजीब सी लगती है कि कोई भी अगर डिसीजन लेते हैं सोचते बाद में और एक्शन पहले ले लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी आप ऐसा मत करिए। सोचिए पहले उसको, उस डिसीजन को लेने से पहले सोचिए कि क्या ये सही है या गलत है, फिर स्टेप उठाइए, ओके। द पर्सन में लाइक टू ऑल्सो such person may like to constantly try new things and can be radical, and there is often a wild streak in the personality of such native. जब लग्ना में या फिर पहले घर में मंगल देवता आके बैठते हैं तो ऐसे जातक की जो मदर होंगी उनका स्वभाव रूखा हो सकता है और वो गुस्से वाली हो सकती हैं। ऐसे जातक के जो छोटे भाई बहन होंगे उनकी जीवन शैली व्यवस्थित होगी, लेकिन आप अपने बच्चों से ज़्यादा खुश नहीं रहेंगे। आपके जो बड़े भाई बहन होंगे उनकी भी जीवन शैली व्यवस्थित हो सकती है, लेकिन आपके जो एल्डर ब्रदर सिस्टर्स होंगे उनके जो और आपके जो यंगर ब्रदर सिस्टर्स होंगे उन दोनों की बनेगी नहीं।
उनके रिलेशंस इतने अच्छे होंगे नहीं, अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस. नाउ मार्स in the first house can also, we can say, exude a strong sexuality and natural radiance, and can jump quickly into romantic partnerships. In relationships, they may need someone equally strong like them, and can actually find this kind of relating energizing, vital, sparking off that inner flame in their personality that needs to burst forth and show its nature. Now, in traditional astrology, it is often stated that recuperative abilities are strong with this position. Although in the older textbooks or older books, we can say it is also indicated that the person is more liable towards scars on the face, and we can also, especially scars on the face, and especially to the part of the body ruled by the sign Mars is placed in. But as said, there can be something striking in appearance about such individual. इनकी appearance बहुत striking हो सकती है. अब जब ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में आपको अपने शत्रुओं से डर लग सकता है, आपको भय हो सकता है, आपको या फिर परेशानी उठानी पड़ सकती है आपके शत्रुओं से, आपको एनिमीज से. आपको सच बोलने का प्रयास करना चाहिए. आप झूठ बहुत बोलते होंगे, लेकिन आप झूठ कम बोलिए और सच ज़्यादा बोलिए. और आपकी जो पर्सनालिटी होगी, आपकी जो फेस होगा, जिस तरीके की आपकी पर्सनालिटी है, आप उम्र में कम लगेंगे. जो आपकी एक्चुअल एज होगी, उस उम्र से आप काफ़ी कम लग सकते हैं. और एक और चीज़ इसमें थी कि आपके स्पाउस से आपके रिलेशंस काफ़ी अच्छे नहीं देखे गए हैं. और अगर मैं इसमें हेल्थ इश्यूज की बात करूं, तो मैंने पहले बताया था कि हेडेक हो सकता है, और एक्सीडेंट्स में मैंने बताए थे, बट दैट वाज दी कंडीशंस अप्लाई वाला पॉइंट. और अगर मैं दोबारा आप शारीरिक हेल्थ इश्यूज की बात करूं इस केस में, तो आपको बुखार से परेशानी आ सकती है. बुखार आपको बार बार आ सकता है, इससे आप परेशान हो सकते हैं. और जो ऐसा जातक है, अगर वो सेना में या फिर चिकित्सक में या फिर इंजीनियरिंग के फील्ड्स में अपना करियर बनाने की सोचेंगे या फिर सोच रहे हैं, तो इन फील्ड्स में वो अच्छा कर सकते हैं. किसमें? सेना, चिकित्सक या फिर इंजीनियरिंग. इन फील्ड्स में अगर वो अपना करियर बनाते हैं, सोचते हैं अपना करियर बनाने का, तो दे कैन बी सक्सेसफुल इन दीज फील्ड्स: सेना, चिकित्सक एंड इंजीनियरिंग. So this was my analysis when Mars is placed in the first house or Lagna or ascendant of a natal chart of an individual. And अगर आपने मेरी सारी वीडियोस नहीं देखी हैं, तो जल्द से जल्द जाइए और मेरी सारी वीडियोस देखिए. आपको अपने दुखों के कारण और निवारण दोनों मेरी वीडियोस में मिल जाएंगे. यदि फिर भी आप मुझसे प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा. आप मेरे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं फॉर प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस. और मेरे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस, हर प्लैनेट की वीडियोस आप जल्द से जल्द देख सकें. और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस शेयर करूंगी, ऑब्जर्वेशंस बताऊंगी, जब मंगल ग्रह दूसरे स्थान में कुंडली के सेकंड हाउस में बैठते हैं तो किस तरीके के इफेक्ट्स देते हैं. मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर.